Good morning, everyone. This is Gazendra, a Gen Z English language student at our education, and today we are going to discuss a very interesting topic, and I must say significant also. So today, as you can see, we have got change of voice. Change of voice जिस टॉपिक का जनरली यूज करते हैं हम लोग ये डिस्क्राइब करने के लिए कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है लाइक सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन एंड जब उसी बात को मैं किसी दूसरे वे में कन्वर्ट करना होता है फॉर एग्जांपल एक्शन डन ऑन सब्जेक्ट इस वे में तब हम इस टॉपिक का यूज करते हैं चेंज ऑफ वॉइस का ये टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जो कॉर्पोरेट्स में जनरली यूज किया जाता है बहुत ही अच्छे लेवल पे इट मींस because sometimes we are supposed to describe the work only emphasize the work actually that yes this work has been done or this work is being done and this work is done. So generally we use change of voice to describe this thing, like about emphasizing the word only, not the tool. I must tell you. Today we will cover a change of voice topic. So let's get started with that. So first thing that we will be introducing this topic to you. What is voice? Voice generally which is used to describe that yes, subject is performing the action. जनरली जो हमारा ट्रांसलेशन होता है लाइक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर हम करने बैठते हैं सो वी जनरली translate the sentences in this way only like subject is performing the action that's it but voice change the kind of voice actually I must say like voices are supposed to change the voice of or tone or the way of describing the same thing without changing a single thing in a sentence yes for example as I say I teach English I teach English. English is taught by me. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है no difference it has got the same essence वही same essence है वही same tense है nothing has changed except the method that we will be using now and we will be learning how we can use this method and how this method sounds like a bit different kind of so let's move forward and this subject performs the action that is called active voice. जनरली हमारे पास सेंटेंस किसी वे में प्रेजेंट होता है लाइक हम जो बोलते हैं कॉमन ट्रांसलेशन वी यूज दिस काइंड ऑफ माना लाइक सब्जेक्ट ने ऐसा काम किया है सब्जेक्ट ऐसा काम करता है कर रहा है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा so the fact is subject is the tool we emphasize subject more in this matter like in the active voice only generally like we have got the structure for subject verb and object there's a universal like structure I was there to translate any sentence in the word out there and when we will change the sentence into passive voice जब हम passive voice में उसी sentence को change करते हैं like active में sentence है हम जो बोलते हैं जनरली कि मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ और कोई भी सब्जेक्ट जनरली ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तो हम एक्टिव स्टेट में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं क्वाइट नॉर्मल लेकिन जब मैं अपने आप को एम्फसाइज नहीं करना है हमें यहाँ किसको एम्फसाइज करना है काम को इंपॉर्टेंस देनी है डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है द फैक्ट इज जब when we are supposed to do this thing like we are supposed to emphasize the subject the doer we will use simply the passive method yes we will be describing the word kind of emphasizing the word only उसको emphasize करेंगे कि हाँ भाई ये काम हो गया हो रहा है होता है या हुआ था हो रहा था होगा etc etc or the mood you can use can may might that इस तरह से उनको चेंज करता है पास्ट स्टेट में चेंज करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे व्हिच इज ऑब्जेक्ट v3 by एंड सब्जेक्ट यहाँ पे जो एक आराम से चेंज में कहूँ बस ये है कि हम क्या कर रहे हैं हम उस वर्क को एम्फसाइज करेंगे विल बी एम्फसाइजिंग द वर्क ओनली और जो भी हमारी जो वर्ब होगी उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे द पास्ट पार्टिसिपल understood with that it will be followed by obviously the preposition by and our subject in the last the doer as we have got the sentence for example there we go Ram writes a letter राम क्या करता है राम एक लेटर लिखता है किसी को राम एक लेटर लिखता है इसी को मैं पैसिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा
राम लेटर लिखता है। यहाँ मैं राम को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, कि डूअर ऐसा करता है। अब जब मुझे लेटर को इम्पोर्टेंस देनी होगी तो मैं उसे पैसिव में कन्वर्ट कर दूंगा। मीन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमें सबसे पहले क्या जानना है, जैसे एज आई सेड अर्लियर दैट इन एवरी सिंगल सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट, परफेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हर एक परफेक्ट सेंटेंस में मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और हमारा ऑब्जेक्ट भी है, अब एवरीथिंग। एंड हमें क्या करना है, वैसे क्या करना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट केस में, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस में लाकर खड़ा करना है। जो भी हमारा टेंस होगा उस टेंस के साथ में जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चेंज कर देंगे दैट से। हमें सिर्फ इतना करना है, क्या करना है, जो भी टेंस है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे एंड नथिंग, एसेंस बिल्कुल सेम रहेगा। आप कहना भी वही चाह रहे हो, डूअर भी वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा इंटरचेंज जरूर होगा। मीन टू से दैट आप राम की जगह वो श्याम नहीं हो जाएगा, लेटर की जगह वो मोबाइल फोन या मैसेज भी हो जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? जब मैं ऐसा कहना हो कि भाई कोई हमारा जो सब्जेक्ट है डूअर वो ऐसा करता है और काम ये किया जाता है हमारे डूअर के बाद। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, जब हम और ब्रीफली समझते हैं आगे। देयर वी गो। यहाँ पर जो कोर रूल्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को करने के लिए ध्यान रखने होते हैं, कोर रूल्स जिनके बिना मुझे लगता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आप करने बैठेंगे सुनने बैठेंगे तो इट्स लाइक साउंड्स वेरी मेलोडियस या कि भाई किस तरह से बात किया जा रहा है, kind of no emphasization on the subject, only like kind of we are highlighting the object कि भाई ये काम को हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे मैनेजर साहब ने पूछा भाई मीटिंग शेड्यूल कर दी, मीटिंग शेड्यूल कर दी, मतलब करा दी गई है, किस बंदे ने करी है दैट डजंट मैटर, काम हो गया, मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड, सब्जेक्ट को ज्यादा पता नहीं। अगर उसने करी है तो वो क्या बोल देगा, अपने आप को एम्फसाइज करने अपने अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, या आई हैव शेड्यूल्ड द मीटिंग, मींस जब भी हमें काम को एम्फसाइज करना है ना कि सब्जेक्ट को, we will be using the passive structure only, passive way में उस चीज को प्रेजेंट करेंगे, same essence no difference again I'm saying। let's move forward towards the rules। पहला चेंज हम क्या देखते हैं कि कुछ तरह इंटरचेंज होगा between our subjects, हमारे सब्जेक्ट्स के बीच में ब्यूटीफुली एक इंटरचेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, as we have studied in the example like Ram writes a letter। राम जी क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है, किसको लिखते हैं वो छोड़ो, राम जी लेटर लिखते हैं, बस इतना लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, ये रहा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानना है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब हमें वर्ब पहचाननी है तो वर्ब तो यही होती लिखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देगा सब्जेक्ट को इसके प्लेस पे और इसको इसके प्लेस पे चेंज कर देगा अ लेटर। ये जो रूल है हमारा, इसका हमने पहले ही पढ़ा था कि जो टेंस है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस एक थोड़ा सा चेंज होगा जो इस्तेमाल का है, यानी कि बी की फॉर्म आ जाएगी अच्छी खासी, एस एज एन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो क्या है, राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भैया, लेटर। बाय लग रहा था, बाय लगेगा हमारा, लेटर इज अ रिटन बाय नाउ, आप समझते हैं आगे क्या करना है, हमें क्या यूज करना है, यूज बी वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल,
V3 हमें बी वर्ब जैसे मैंने कहा बी वर्ब इसका यूज किया था हमने अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करते जाएंगे एमआर वाज वर बी बी इतनी जो वर्ब्स हैं ये काउंटेबिलिटी दिखाएंगी इसमें अपने अपने आगे रिस्पांसिबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू टेंस वो भी हम देखेंगे कि किस टेंस के अकॉर्डिंग क्या टेंस में कुछ हल्का सा जो होता है ना स्वाद आता है गार्निशिंग जो होगी वो गार्निशिंग हम यहाँ देखेंगे कि किस किस तरह की गार्निशिंग की जाती है ताकि उसको मेलोडियस साउंड कराया जाए yes, पहले साउंड मेलोडियस कर रहा था चाहे हमारा सेंटेंस अब हम मेलोडियस साउंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या हम गार्निश कर सकते हैं जैसे टेंस ऑफ बी वर्ब मिरर द ओरिजिनल टेंस कि बी का जो भी अपना वर्ब लाइक फॉर्म आएगा लाइक इज एम आर वाज वेर जो भी आएगा वो हमेशा मिरर करता हुआ नजर आएगा टेंस को हमेशा मिरर करता हुआ कोई चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया पास्ट था तो फ्यूचर हो गया फ्यूचर है तो कुछ और हो जाएगा बिल्कुल नहीं वो अपना ही एक अंदाज लेके आएगा फॉर एग्जांपल tense is perceived by the helping verb not by the main verb टेंस किससे परसीव किया जाता है उसके हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब से नहीं जाता और हमें क्या ऐड करना है हमारे ओरिजिनल सब्जेक्ट के बाद जब भी ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा उससे पहले हमें बाय प्रपोजिशन में यूज करना पड़ेगा कि भाई इसके द्वारा ऐसा किया गया अदरवाइज कनेक्शन फेल हो जाएगा वाईफाई का और मामला खराब हो जाएगा let's move forward change pronouns accordingly and like yes while changing the subject or changing the object, like interchanging them, you will have to remember this thing that we will be changing their subjective case to nominative, like or nominative case to objective case. You will have to do that. Subjective case into objective case into nominative case or subjective case. जैसे I me में change होगा, we us में change होगा, he him में change होगा, she her में change होगा, they them में change होगा, and vice versa. इन चेंजेस का मैं बात करूंगा जैसे एक सेंटेंस कर लेते हैं आई लव इंग्लिश भैया ये बोलते हैं अब सब्जेक्ट क्या है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या है अंडरस्टूड वर्ब क्या है गॉट द पिक्चर तो हमें क्या करना है सिर्फ हमें बस इन दोनों को इंटरचेंज करना है इसका कुछ और नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है तो इंग्लिश का इंग्लिश होना है भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस है इस जमा और मोटी तो लगेगी लगेगी इस क्या learned by आई है यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है यानी नॉमिनेटिव केस अगर ये नॉमिनेटिव केस है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा ही होगा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई मी होता है इंग्लिश इज लर्नड बाय मी समझ में आया फर्दर देन आगे बढ़ते हैं एडिशनल रूल्स क्या होंगे जो हमें एडिशनल रूल्स ध्यान रखने हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं कि नो ऑब्जेक्ट मींस नो पैसिव ये बहुत एक खतरनाक सा रूल है बहुत ध्यान रखना जिस भी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बन सकता है फॉर एग्जांपल आई स्माइल पैसिव बना सकते हो नहीं शी डज पैसिव बना सकते हो नहीं शी इज डूइंग अभी भी नहीं बना सकते भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट मींस नो पैसिव व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टूड एंड शुड बी फॉर द पिक्चर लेट्स मूव फॉरवर्ड देन अगर interrogative sentences हैं if we have got interrogative sentences then use be at the starting yeah be means for example we have got the sentence like active
डज शी नो, क्या वो जानती है, पैसिव क्या बनेगा, इज इट नोन बाय हर, कुछ हुआ चमत्कार, अरे देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल यानी कि डूडल्स, और हमें यह याद रखना है कि डूडल में मेरा चेंज होगा आर में बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी वो प्रसाद की तरह है, फीलिंग की तरह है, लग गया। Now we will have to remember one thing more, that जब भी हम इंट्रोगेटिव करेंगे obviously like because it's present simple tense does आगे आ गया according to subject, and now because we haven't got any subject like does she know, क्या वो जानती है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं चालू देखिए, इज इट नोन बाय हर, यहाँ पे हमने डमी सब्जेक्ट यूज किया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का व्हिच इज हमारा इट, इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की तरह हिडन था, बट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट यूज कर लिया, जिसके लिए हमने सब्जेक्ट डाला है इस बार, क्या कहने के लिए कि क्या उसी से कौन जानकारी है, टेंस वही है, टेंस पे देयर इज नो चेंज, बट स्टिल एसेंस थोड़ा सा मतलब, हालांकि एसेंस भी वही है, थोड़ा चेंज नहीं हुआ, चेंज सिर्फ इतना हुआ कि आपके कहने का तरीका हो गया, नाउ एक ही बात आपने दो तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल, and now we have what for negative sentences, negative sentences में क्या चेंज आएगा, negative sentences retain not, बस क्या लग जाएगा, not लग जाएगा, जैसे he didn't write, उसने नहीं लिखा, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल जैसे प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इज अ सॉरी प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इज अ मान लेगा, उसी तरह अगर पास्ट है पास्ट सिंपल तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाज वर्ब क्लियर है, he didn't write the letter, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट होता रहेगा, लेकिन भाई फिर हम इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे, इंट्रोडक्टरी इट का, इंट्रोडक्टरी इट क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी सब्जेक्ट में इट नहीं है हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम पैसिव में इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, how can we convert that into passive state. I know couple of minutes ago I mentioned the same thing, that if there is no object means no passive, but there are exceptions also, and English में exceptions होना कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा तो होता ही आ रहा है, so we will be studying exceptions also, like in what all the conditions can we convert the sentence into passive without having any object in the sentence. Yes, you heard it right. Let's move forward. He didn't write. Conversion क्या हुआ? It passive was what related was not verb की third form by हमारा जो subject था क्या था he का जब objective case करना जाएंगे him कोई चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेंस वही है कि ये उसके द्वारा लिखा गया, उसने वो लिखा या उसने लिखा, सिंपल ये लिखा हुआ है he did not write कि उसने नहीं लिखा भाई, उसके द्वारा नहीं लिखा गया, उसने नहीं लिखा या उसके द्वारा नहीं लिखा गया, एक ही बात, दो अलग तरीके से, फॉर इंपैरेटिव में भैया जाते हैं यूज लेट और बी, जैसे ओपन द विंडो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेट लगा और जो ऑब्जेक्ट मिले उसको आगे बढ़ो, यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज होती है, लाइक वर्ब हो गया आपके पास, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, लाइक कमांड की तरह काम करता है कि अक्सर जब भी पैराग्राफ देखे जाते हैं तो वर्ब्स पहले लगती होती है कि डू, राइट दिस, डू दिस, ड्रिंक दिस, हैव दैट, कुछ इस तरह से, इट मींस इंपैरेटिव क्योंकि एक तरीके से कमांड रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसके लिए हम लेट का यूज करेंगे, जो कि पॉजिटिव वर्ब है which is quite understood, जहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट ऐसे है, तो उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या जरूर है एंड बी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए we will be using be to open this word,
वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे आप लगा सकें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का हम की थर्ड फॉर्म लगा देंगे which isn't quite good or we haven't got the structures like. Next, we move to the modal verb. See this, my favorite. Modal verbs. अगर modal verb में change हो रहा है, for example, if there is any sentence जो कि किसी भी modal से belong करता है, can, could, may, might, must, has to, have to, जो भी है, उसमें सिर्फ इतना होगा वही modal verb same, कोई change नहीं होगा modal verb में, बस एक be ऐड हो जाएगा as an extra helpful verb और subordinate का काम तो subordination का काम करेगी and verb की third form which is quite common एक चीज आप बहुत ही कॉमन पाएंगे that when we are supposed to change active to passive verb की third form is necessary which means past participle form is a pivotal thing that you will have to carry through. Let's move further. We have work like tense wise verb. अब tense wise verb पे देखो कैसे चेंज जाता है. As I said earlier, that जो present simple tense है, present simple tense means V1 or V5. हम V1 तो जनरली पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि भाई V1 फॉर्म होती है और V1 के साथ में ऐसी ये सब होती है. But the fact is, according to modern grammarians, it was never V1 SEIVS. It was just V5 form, or I should say present simple form for our singular subjects only. Like he, she, it, name or any singular like subject. And इसी को हम चेंज करते हैं आगे जाकर के is am are और V3 form. V3 form is necessary as that बस चेंज क्या हो रहा है is am are में चेंज होगा. दूसरी चीज अगर हमारे पास past simple tense है past simple को हम जनरली चेंज कर देंगे हमारे was were और verb की थर्ड form. And if there is future will and be will we'll be changing this in will be and V3 form and nothing more than that. And if there is past continuous means is, sorry, present continuous. Is, am, are, V1 and ing. जिसको हम चेंज करते हैं is, am, are, been plus V3 जो कि ing का होता है. तो जनरली हम इस जमाने सकते हैं V1 और ing फॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने कमी पूरी कर दी एज एन एक्स्ट्रा हेल्प ऐड कुछ नहीं. इसके बाद में हम V3 फॉर्म लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं जैसे हम खुद कहते हैं एक टीचर होने के नाते बीइंग अ टीचर it's my responsibility to guide my students or being a mentor it's my responsibility to motivate my fellows friends means being के साथ में आप जनरली B3 फॉर्म एक अलग माना यूज करते हुए नजर आते हैं वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे let's get started here only अगर was were और human of ing फॉर्म means past continuous है तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा बस हम being ऐड कर देंगे क्योंकि ing की कमी को पूरा करना नजर आया क्योंकि इस हमारे साथ में जनरली हम continuous फॉर्म में ing लगाते ही लगाते हैं और उस continuous स्टेट को शो करने के लिए ही हम यहाँ पे being ऐड कर रहे हैं and fourth present perfect. Present perfect we will be using has, have and V3. Has, have, V3 इसमें be ऐड हो जाएगा और V3 which was constant. And for past perfect we have got had plus V3 had plus V3 वही same जैसे has have been change हो has have been हो जाएगा has ever का singular तो has have been लगा देंगे और वो की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे past perfect भी सेम है had been और वो की थर्ड and future perfect वही सेम सा होना कि will have been लगा देंगे और वो की थर्ड फॉर्म तो लगा देंगे वो कंपल्सरी लगा गया next rules नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल से पढ़ लेते हैं पहले एग्जांपल हमारे पास है सिंपल टेंस के कि किस तरह हमारे सिंपल टेंसेस में चेंज आता है और लाइक प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल एंड इवन फ्यूचर सिंपल किस तरह से इनके टेंसेस एक्चुअल चेंज होते नजर आ रहे हैं जैसे हमारे पास था शी राइट्स अ लेटर अब टेंस पहचानो भाई कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है हां जी पहचान लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसा कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस है V1 और V5 फॉर्म
वो चेंज होता नजर आएगा इज एम आर में और बी क्या लगाना था सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पहले आना था आ गया क्यों क्योंकि V1 है या फिर V5 फॉर्म है कह लो एनी प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारा एम्फेसिस आर में चेंज होना ही हो गया और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी वो थर्ड फॉर्म आ गई और बाय करना था जस्ट हमारे सब्जेक्ट से पहले वो रख गया और हमारा ये सब्जेक्ट लास्ट में आ गया कौन से फॉर्म में अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा लेटर लेटर का कोई नॉमिनेटिव फॉर्म हो सकता है नहीं हो सकता सेम आ गया वर्ब क्या थी हमारी V5 V5 चेंज हो गई किसमें भाई इज एम आर और V3 में चेंज हो गई हमारी यदि आप लोग के अपने से ज्यादा होगा क्या आना है क्या हमें चेंज ही किसमें करना है प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर और V3 में चेंज होना ही होना है एंड अगर पास्ट सिंपल है obviously understood was were and V3 for example we have got they built the bridge they built the bridge क्यों ना भाई ब्रिज बनाया उनके द्वारा ब्रिज बनाया गया सेम बात नो चेंज इन द एसेंस एंड टेंस कोई चेंज नहीं है द ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम देखा देम में चेंज हो गया जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया और कुछ हुआ बिल्कुल नहीं हुआ बस इतना सा इंटरचेंज ही हमें ध्यान रखना है बिल्कुल शार्पली कि जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है एस को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं ये हमारे लिए कुछ वर्ब और ये रहा हमारा कुछ ऑब्जेक्ट ठीक है चेंज कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट कुछ यहाँ चला जाएगा और वर्ब जो है वो बी की जो भी फॉर्म होगी चेंज होके थर्ड फॉर्म बनेगी और सब्जेक्ट हमारा फॉलो क्या करेगा बस एक बाय प्रेपोजिशन को फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया कुछ अपने नॉमिनेटिव केस में और सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा अपने ऑब्जेक्टिव केस में मैं समझ में आया बस यही है जो सारा रूल है जिसे आप जिस स्ट्रक्चर को हमें बहुत क्लियरली लिख के याद रखना है और डालो पूरी तरह से इस और डालो मतलब क्योंकि हम ये एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है देख सकते हैं नेक्स्ट वी हैव गॉट for let's discuss for continuous now मतलब दिन स्टडी करना है आप लोगों का अब देखो भाई continuous और perfect में क्या चीज होता है प्रेजेंट परफेक्ट भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि पहले कहा था टेंस में कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ बीइंग ऐड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बीइंग ऐड होगा बीइंग और बीइंग और वर्ब की तो जैसे शी इज रीडिंग फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट शी इज रीडिंग अ बुक वो क्या कर रही है भाई वो किताब पढ़ रही है या फिर मैं क्यों कहूं कि किताब को दोबारा पढ़ा जा रहा है एक ही बात है फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या किया सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया है यानी डूअर को एम्फसाइज किया है इन द नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट हैव आई डन आई हैव सिंपली एम्फसाइज्ड माय ऑब्जेक्ट और द वर्क आई मस्ट से लाइक व्हाट इज बीइंग डन बुक इज बीइंग रेड बाय दैट्स इट और कुछ नहीं होगा एंड फॉर पास्ट कंटीन्यूअस दे वर प्लेइंग क्रिकेट क्या कर रहे थे वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे या फिर मैं कहूँ उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट केस में आके यूज हो गया कौन सा टेंस था पास्ट कंटीन्यूअस जो था वाज वर्ब प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई हो गया चेंज और कुछ था नहीं था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है अपना भाई नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है तो ये थोड़ा मामला इजी है
हाथ आपके साथ में आपको सिर्फ बी ऐड करना है, इंटरचेंज तो होना ही होना है। कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है बेसिक कि जो बोली भी जाए और आप समझे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा आंसर दिया हुआ है, the task has been completed, task has been completed by him। और सीधा देखो, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं जनरली, तो एक्टिव स्टेट का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि हमें एम्फसाइज करना होता है हमारे सिर्फ काम, ना कि it means sometimes if the doer is written it is absolutely correct, yeah, or I must say drastically correct। जैसे ई सेंटेंस को मैं बोलता हूँ, he has completed the task, he has completed the task। इसका जब मैं पैसिव चेंज करने बैठूंगा तो क्या होगा, टास्क has been completed। समझ गए क्या करना है, टास्क has been completed, that's it। कोई जरूरत नहीं है एम्फसाइज करने की भाई किसने किया, क्यों किया, किसके लिए। मुझे कहना है मेरे फ्रेंड को किसी ने मारा, ठीक है, माय फ्रेंड वाज बिटन, मुझे तो पता ही नहीं ना किसने मारा, मैं क्यों बोलूं फिर बाय समवन, इतना ही कम सेंटेंस कंप्लीट है, माय फ्रेंड वाज बिटन, यू मत बोल देना माय फ्रेंड बीट समवन, वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। या मैं कहूं मैंने किसी को थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड समवन, इसको ऐसे मत बोल देना आई वाज स्लैप्ड, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गहराई को समझना बात, हम जनरली जब इन बी की फॉर्म्स का यूज करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड एटसेट्रा सो ऑन प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है कि डूअर ने कुछ नहीं किया है, उसके द्वारा किया गया है या उस पे किया गया है एक्शन, डूअर को एम्फसाइज नहीं किया जा रहा, काम से मतलब है कि भाई ये काम हुआ है, उसे मारा गया है, उसने नहीं मारा है, उसको मारा गया है, थोड़ा मतलब होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। Past perfect tense it is generally followed by had, been and be3 form, which was understood second में हमने पढ़ा था। जब चेंज होगा सेंटेंस समझते हैं ना, she had cooked the food, कि भाई वो खाना पका चुकी होगी, काम को एम्फसाइज करता है। Food had been cooked by her, भाई उसने खाना पका दिया होगा, वो खाना पका चुकी होगी, खाना पक चुका होगा, उसके बाद पकाया जा चुका होगा, उसके बाद जब हमें क्या करना है, काम को ही सिर्फ एम्फसाइज करना है, फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर सपोज्ड टू यूज द पासिव टेंस। और पासिव टेंस पढ़ लेते हैं, चलो अब हमारे इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में क्या घमासान होने वाला है भाई, चेंज कुछ होगा, जैसे हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हुए आ रहे हैं, वी आर सपोज्ड टू यूज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद क्या लगाना होता है, वर्ब लगानी होती है, उसके बाद क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट, और क्या होगा कुछ ऐसे ही बनता है परफेक्ट इंटरप्रेटर सेंटेंस। और लाइक ऑन द टॉप ऑफ दैट यू कैन ऐड WH only, that's it, not more than that you will do, or you will have to do, I must say। So the fact is when you are supposed to convert any active statement into passive statement, you will have to remember this thing that जिस तरह से हमने टेंस की फॉर्म से याद किया था, इसके साथ टेंस वाइज चेंज हो रहा है फॉर्म में, you have to do that only। कि अगर भाई हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इस एम और पी3 की फॉर्म में, जैसा कि हम एग्जांपल से समझते हैं, आई थिंक इट विल बी वेल। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, डज शी राइट लेटर्स, क्या वो लेटर लिखती है, इसी को हमने पैसिव में चेंज किया तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इस एम और पी3 चेंज हो गया, आर लेटर्स रिटन बाय, आर लेटर्स रिटन बाय हर, क्या लेटर्स को उसके द्वारा लिखा जाता है, और क्या वो लेटर लिखती है,
टेंस चेंज हो रहा है इतना भी बात को समझे। टेंस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एसेंस वही रहेगी, बस आपको कुछ ग्रामेटिकल चेंज करने पड़ेगा so that it may or it can sound right? आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि पहले ही बताया था कि हैव दिया हुआ आपके पास टेंस है, हैज हैव ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं करना, बस बीन ऐड करना। जिस तरह से हमारा हैज इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट करता हुआ है स्टार्टिंग से, लाइक हैव यू ईटन द फूड, क्या आपने खाना खा लिया? इसी को पैसिव पूछ रहा हूं, क्या आपके द्वारा खाना खा लिया गया? हैज द फूड बीन ईटन बाय? Has the presentation been delivered by her? क्या उन्होंने presentation दे दी? एक ही बात है, has she delivered the presentation? Has the presentation been delivered by her? Tense एक ही है, tense एक ही है, nothing has changed apart from the way you delivered the sentence. और कुछ नहीं. Next, देखो past, हम लोग past simple करते हैं. Past simple में हमें क्या कहते हैं? Did they build the bridge? Did obviously didn't given और मोरोवर भी कहते हैं आप V2 form अगर simple statement में करता है and the answer is was the bridge built by them? past simple था was और verb की थर्ड कंडीशन में था। आगे बढ़ते हैं इधर मुड़ा कि भाई मुड़ाल में कैसे चेंज आएगा? जब भी हमें ऐसा कहना है कि आप ये काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, कोई भी काम कर, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ा सकते हो, तो मैं शुरू कर रहा आप मैथ्स पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच मैथ्स। किसी को अगर पैसिवली लाइक दूसरे वे में कहना हो तो क्या कहा जाएगा? मैथ्स कैन सिर्फ बी ऐड करना, बी टॉट, वो भी रखो which is compulsory. Math can be taught by you, but I say I cannot teach, I always shy away from maths. That is a different thing, but yes, जब भी किसी मोडाल को चेंज करना है into past voice, आप क्या करना है? सिर्फ मोडाल बी और बी3, मोडाल का पास्ट फॉर्म में चेंज नहीं करोगे, कैन वुड पे चेंज करोगे, शैल शुड में चेंज करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फैक्ट वॉइस में हमें बहुत ध्यान रखना है। इसका तीसरा फॉर्म है बी, जो एक फॉर्म है उसका यूज करना है, जिससे हमारा सेंटेंस है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट और किस सब्जेक्टिव लेस आ गया, सब्जेक्ट और किसके ऑब्जेक्टिव लेस आ गया, फॉलोड बाय बाय। Can this problem be solved by you? क्या ये प्रॉब्लम आपके द्वारा सॉल्व करी जा सकती है? क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? Can you solve this problem? और क्या ये प्रॉब्लम आपके द्वारा सॉल्व करी जा सकती है? Can this problem be solved by you? Was there any change? No, obviously. No change in the mode of the speaker, and no change in the essence of the sentence. No change in the meaning also. Let's go further. We have got some negative sentences as well. कि भाई नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इसका यूज होगा? नेगेटिव के लिए हमें जो चीज ध्यान रखनी है कि जिस तरह हम टेंस को चेंज करते हैं वो आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, लाइक which is followed by a structure, subject, then helping verb, and then not, and then verb, then object. This is it. This is the structure which is being followed for negative sentences. क्या ऐड करना होता है? मैं हेल्प के बाद नॉट ऐड करना होता है, और जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लाइक टेंस वाइज दे विल बी डन इन देयर ओन वे, वो करते किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अवर सेंटेंस शी डजंट रीड नॉवेल्स, कि भाई वो नॉवेल नहीं पढ़ती है। पैसिवली अगर इसको हिंदी में साउंड कराऊं तो कुछ ऐसा होगा कि उसके द्वारा नॉवेल नहीं पढ़ी जाती है। नॉवेल्स आर नॉट रेड बाय हर। रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रीड ही होती है, बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज होता है, रीड से वो रेड होता है। वो रेड कलर होता है आपको कुछ ऐसा, अब ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हमारी बस एक रेड की हल्की सी प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रीड रेड।
spelling no change. Next sentence we have what? He did not complete the work. कि भाई उसने काम कंप्लीट नहीं किया, काम उसके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया. Work was not completed by him. कुछ इसी तरह से आप अदर टेंस में भी यही सेम चीज करते जाएंगे कि किस तरह से काम उसके द्वारा किया जाएगा और किस तरह वो काम करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल he will go to the market. Market will be market will be gone. बन रहा है सेंटेंस. तो जिस सेंटेंस में हमें बहुत क्लियरली याद रखना है, जिसमें मैंने पहले ही कहा था, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, काम ना हो, क्योंकि ये काम नहीं हो रहा है, वो मार्केट जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा मार्केट में. जब तक सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा तब तक आप उसका पास्ट ट्रांजिशन नहीं कर सकते. हाँ हम कलेक्टर रटने देने के लिए यूज कर सकते हैं. मार्केट विल बी गॉन बाय हिम. लेकिन अगेन काम का होना बहुत नेसेसरी है. जैसे ही विल डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, will deliver a presentation. A presentation will be delivered by him. कुछ इस तरह से मीन्स जब भी हमें किसी टेंस को चेंज करना है, टेंस वाइज फॉर्म को याद रखना बस. I hope you must have taken the picture of that particular point. आपने उस पॉइंट की पिक्चर ली होगी. Now let's move forward to its modal. एक modal and negative. You must not break the rules. कि आपको क्या नहीं करना चाहिए भाई? आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए. अब इसका पास्ट क्या बनेगा? रूल्स को आपके द्वारा नहीं तोड़ा जाना चाहिए. यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, कि आपको रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए और रूल्स को आपके द्वारा ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए. मोडाल अपने मोड में ही रहेगा जो था मस्ट. मस्ट ही रहेगा. बस क्या अलग क्या? तो हमारा मस्ट एक हेल्प ग्रुप की तरह यूज होता है. ऑब्वियसली वहां में हेल्प ग्रुप के जस्ट बाद हमारा नॉट लिख गया जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था. इट इज बीइंग फॉलोड बाय अ स्ट्रक्चर, subject, helping verb, not, and then verb, and then object and nothing. You know, fine. Comparative sentences, my favorite one. तो फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना होता है, चेंज वाला में चेंज होना है. बाकी सब वो भी जस्ट क्वाइट अंडरस्टूड, वो तो अंडरस्टूड है. अब इधर से तो ज्यादा लफड़े बाजी नहीं. फॉर एग्जांपल आज मैं आपको दिस सेंटेंस. Okay. Yeah, about the sentence open the door. Obviously statement है इसकी comparative sentence की कि भाई दरवाजा खोलो. Right. Open the door. दरवाजा खोलो. अब भाई इसका sentence क्या होगा? Let the door close. दरवाजा खोल दिया जाए या खुलवा दिया जाए. कुछ इस तरह. Let the door be opened. खिड़की को खुले रहने दिया जाए. कुछ इस तरह से. जब हम इस टाइप के कुछ सेंटेंस को चेंज करते हैं कंपैरेटिव टाइप सेंटेंस को, तो हमें एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है. इट विल बी फॉलोड बाय स्ट्रक्चर let object be plus v3. दिस इज अ वेरी नेसेसरी स्ट्रक्चर टू बी रिमेंबर्ड बाय यू. ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को याद ही होना चाहिए. अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ नॉट ऐड करना होगा. कहां पे भाई? से पहले. Let object not be and be. Yes. This is further. Do not waste time. Right? समय बर्बाद मत करो. Let subject क्या हमारा? Time. Let time not be. हमें टाइम को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. तो हमें क्या करना है? एक ही बात को पास दो फेज में प्रेजेंट कर देना है. To sound just more smart, faster, yeah. Sound smarter, may use this structured form
called passive. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। डोंट ब्रेक द ग्लास, कि भाई ग्लास मत तोड़ो। जब पासिव फॉर्म में आएगा तो क्या साउंड करेगा? लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा ग्लास, लेट द ग्लास, ग्लास के बाद नॉट लगाना है, लेट द ग्लास नॉट लगाना है, बी और कुछ फॉर्म लगानी है, लेट द ग्लास नॉट बी ब्रोकन, कि भाई ग्लास को तोड़ो मत। एट द पूल for affirmative form, yeah, affirmative form at the pool कि मेरे को मदद करो, let the pool be help, अब क्या है? help, ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा तो नहीं कि वो के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा भी, वो इंट्रोगेटिव पर्पस में होता है, बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव है नहीं, क्यों? जैसे क्या है ये पीरियड साइंस आप देख रहा होगा, पीरियड इट मींस फुल स्टॉप, जहाँ पे पीरियड सिंबल होता है मतलब अगर सेंटेंस क्लास में होता है तो जनरली वी अज्यूम दैट इट इज an affirmative sentence और सब्जेक्ट, बट हाँ हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि भाई ये तो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तो नहीं, इंट्रोगेटिव जनरली फॉलोड बाय दिस, कि भाई इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता ही आता है, बार बार टेक देते हैं ताकि हम क्वेश्चंस और जनरल सेंटेंस में डिफरेंशिएट कर सकें। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट अनदर स्टेटमेंट फॉर मोडाल्स, कि भाई मोडाल्स में कितना कैसे कहाँ चेंज आता है और किस मोडाल में क्या चेंज होगा या नहीं होगा जनरल, अगर हमें ये सोचना है तो इतना ध्यान रखना मोडाल में कभी कोई चेंज नहीं होता, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कैन का कुड नहीं हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हैव टू कुछ नहीं होगा, या एक शुड मींस लाइक शैल का शुड नहीं होगा, विल का वुड नहीं होगा, मे का माइट नहीं होगा, you will have to do one thing only, that it will add a single thing which is be as an extra helping verb or as an coordinator helping verb की तरह वो यूज किया जाएगा यहाँ पे मॉडल के साथ, ताकि हम B3 फॉर्म का यूज कर सकें, जैसे कि I can do everything, I can do everything, अगर इसी सेंटेंस को चेंज करना है into passive voice, it will sound like everything can, no change in modal, be as an coordinator helping verb add हो जाएगा, everything can be do which लग जाएगी done by me, कि भाई सब कुछ किया जा सकता है मेरे द्वारा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, everything can be done by me. Let's move towards our examples given here. She can solve the problem, कि वो क्या कर सकती है भाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, कुछ भी ले लो, she can cook the food, she can drive the car, car can be driven by her, the problem can be solved, किसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किया सकती है, तो मैं he may use my pen, क्यों मेरा पेन यूज कर सकता है, my pen may be used by him, और जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा यू है तो यू लगा दिया, ये तो यू लगा दिया, शी तो हम लगा दिया, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट का, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस पे आएगा तो वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एंड वी हैव गॉट अनदर मोरल, वी मस्ट फॉलो द रूल्स, हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए ही चाहिए, जिसका passive voice it will sound like the rules must be followed by us. Next one would be our God. He would sing a song. He would गाना गाना चाहेगा. A song would be sung by him. And we have got another modals like could have, could be में चल हो गया. Might, if we have got, then it has changed in might be. If we have got should, it has changed in should be. Had something changed? No, nothing has changed. कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या करना है, मोडाल, and we will have to add be and V3 form, that's shall have, shall be, and V3. You can like simply see that there are V3 forms as well, which are military, sorry, then obviously a sentence will be active form,
B3, main, B3, and we have done this as well. यानी कि क्या हुआ है, सिर्फ ये अपने फॉर्म्स में चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। आगे कुछ हम और चेंजेस पढ़ते हैं कि किस तरह से और फाइनल फर्दर फर्दर चेंज होते हैं। जैसे मैं हमेशा अभी ठीक ठीक के नजर आ रहा हूँ दैट जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, एनी सब्जेक्ट में लिसनिंग का पास्ट वॉइस के अकॉर्डिंग से चेंज होना होता है, मुड़ के पीछे जाना होता है, देन ही विल हैव टू बी चेंज्ड इन इट्स सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अगर वो आई है एक्टिव सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस में आई है वो एक्टिव सेंटेंस है, जब वो पैसिव में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, यानी वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। अगर बी है तो अस में चेंज हो जाएगा, शी है आर में चेंज हो जाएगा, ही है हिम में चेंज हो जाएगा, इट यू नो चेंज। इन चीजों का ध्यान रखना है कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हु में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, और कोई चेंज फिर क्या चेंज होता है, एक हमारा जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगर जो भी टेंस है वो टेंस अपने बी और बी थ्री फॉर्मेशन बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग वी हैव व्हाट इन एग्जाम विद एग्जांपल्स वी विल स्टडी दैट आई रॉट दिस लेटर। मैंने क्या किया, मैंने वो लेटर आई रॉट दिस लेटर कि भाई मैंने ये लेटर लिखा, अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। साउंड क्या करेगा कि इस लेटर को मेरे द्वारा लिखा गया, दिस लेटर वाज रिटन बाय मी। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, आई। जब ये पैसिव में चेंज होगा ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस टू नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा। जब कोई भी सब्जेक्ट होगा जो हमारा अपने नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, व्हिच इज कॉल्ड पैसिव। पैसिव वॉइस में भाई ये जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट अपने नॉमिनेटिव केस से पैसिव हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नजर आएगा, एंड वर्ड अपने पी और पी थ्री फॉर्म में नजर आएगी। These changes are very necessary. Next change we have he did not help us, कि उसने क्या नहीं की भाई, हमारी मदद नहीं की। अब यहाँ पे दो जो ध्यान देने वाली चीज है, एक हमारे पास जो जनरली हमारा सब्जेक्ट होता है वो ही है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अस है। वी हैव व्हाट ऑब्जेक्ट अस, जो अपने नॉमिनेटिव केस में नहीं है, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, और जो ही है हमारा नॉमिनेटिव केस में। अब जब इनमें इंटरचेंज होगा इट मींस ही अस की जगह पे आएगा और अस ही की जगह पे आएगा, इट मींस दे विल बी चेंज नाउ, दे विल बी चेंज इन देयर nominative to active, sorry, nominative to objective form and objective to nominative form. Like he will change into us, us it will be changed in us। क्या है, बी का ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो अपने ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में आ गया, क्यों, क्योंकि उसको सब्जेक्ट की पोजीशन में आना है। नेक्स्ट वी हैव दे इनवाइटेड हर, उन लोगों ने उसे इनवाइट किया, सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ऑब्वियसली दे आर इन देयर एक्टिव स्टेट, कि वो अपने अपने एक्टिव स्टेट में है अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। when they are supposed to change into a passive form, they'll be following the form कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा it will change into noun। यानी जो हर है वो जब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आएगा वो she में चेंज हो गया, और जो दे है वो यहाँ बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या पे लिखा हुआ है, आई में चेंज होगा, बी एस में चेंज होगा, ही एम में, शी हर में, दे, एंड वाइस वर्सा। लाइक मी क्या है वो आई में चेंज जाएगा, us we में, him he में, her she में, and them for you and it there is no change। Further, now we have got special and tricky things to understand that unknown in general जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके लिए हम कैसा सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे into past form। As we have got the example, someone stole my wallet, someone
तो मैं बोला कि भाई किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब जब इसको पास स्टेटमेंट में नजर आएगी तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? वॉलेट। समझ क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट तो है बट हम इसको कह नहीं सकते लाइक इट इज सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है व्हेन वी आर नॉट सपोज्ड टू मेंशन द डूअर इन द सेंटेंस। एज आई सेड अर्लियर, आई हैव रिटन द लेटर। भाई मैंने लेटर लिख लिया है, आई हैव रिटन द लेटर। अगर मुझे एम्फसाइज करना है सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट को, देन आई एम नॉट द नेसेसरी थिंग टू बी एडेड सेंटेंस। वो सिर्फ एम्फसाइज करेगा और कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इसी को कन्वर्ट करता है इनटू अ पैसिव फॉर्म। आई हैव रिटन द लेटर, द लेटर हैज बीन रिटन by me is it not? No, it isn't needed to write by me or to like make it sound by me. No, it will be the emphasization and nothing. It will be called an emphasization कि आप emphasize करते नजर आएंगे सेंटेंस को और कुछ नहीं होगा। इसलिए कई केसेस में से हम by agent mentioned है नहीं जब पैसा किया my wallet was stolen कि भाई मेरा पर्स चोरी कर लिया गया किसके द्वारा? by someone। क्या ये लिखा नहीं जा सकता था? लिखा जा सकता था नहीं, indefinite pronoun में लिखा जा सकता था। What have you got? We have got indefinite pronouns। ये बैन है सेंटेंस में, बिल्कुल बैन नहीं है भाई। लेकिन जैसा मैंने कहा when we are supposed to emphasize the doer and the subject, we will just omit that. But yes, again, the conversion के लिए बहुत जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट हो जिसके आपने प्रॉपर वर्ब लगी हो एंड ऑब्जेक्ट हो। Otherwise, any sentence who hasn't got a subject or object properly will it be changed into a passive form any day, like anything. Next sentence, next thing we have got double object। अगर sentence में double object आ बहुत सुंदर ऐसा जरूरी रहता है। तो he or she gave a gift, तो भाई उसने एक गिफ्ट दिया। ध्यान से देखना, दो ऑब्जेक्ट्स, him और a gift। सब्जेक्टिव केस में कौन सा आएगा भाई? जनरली when this happens, like ऐसी चीजें होती है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल the gardener watered the plants, the gardener watered the plants। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट जो हिडन है, एक जो क्वाइट विजिबल है, जैसे राइट gardener watered the plants। एक जो विजिबल ऑब्जेक्ट है दैट इज plants, एक जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो है वाटर। भाई पेड़ों को क्या दिया? पानी दिया गया, किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। पानी भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, प्लांट्स तो है, प्लांट्स को दिया गया है ऑब्वियसली, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Likewise, we have this sentence, she gave him a gift, जिसका कुछ पासिव फॉर्म इस तरह से होगा कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिससे हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है, she gave him, एक्शन कहाँ हुआ है उस पे, give him a gift। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट, ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये एडिशनल सब्जेक्ट की तरफ आगे आएगा, जिसे हमें एम्फसाइज नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को आगे उठाना है सब्जेक्ट को। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट केस था, नॉमिनेटिव के नीचे कर दिया he followed tense past simple tense was were and v3 was given a gift by her कि भाई उसे उसके द्वारा एक तोहफा दिया गया। मैंने जैसे इस टर्म को ट्रांसलेट करते हैं गार्डनर वाटर द प्लांट्स, गार्डनर ने क्या किया? पौधों को पानी दिया। अब दो फॉर्म में सेंटेंस चेंज कर सकता हूं, जैसे वाटर was given किसको? plants को। water was given to plants by gardener। the agent will be followed by preposition, which is quite interesting। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एक फ्रेंड सब्जेक्ट है मेरा वाटर पानी दिया गया प्लांट्स को, किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। इस सेंटेंस को जो अभी हमने जस्ट फिनिश किया है, she gave him a gift,
का कुछ कन्वर्जन ऐसा था, ही वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, अ गिफ्ट वाज गिवन टू हिम बाय हर। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखता? गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, इस तरह से भी ठीक है। But again, as I mentioned, that we will be giving the preference to the first object we encountered. कि जिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट से हम एनकाउंटर करेंगे, जो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेकंड में हम उसको ही प्रेफरेंस देंगे एज आर नॉमिनेटर। समझ गए? नेक्स्ट आता है हमारे वर्ब। He works with to an act, जैसे his behavior surprised us। उसका behavior जो है ना, उसने हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। We were surprised at his behaviors, कि हम क्या हो गए, उसके behavior से सरप्राइज हो गए। It means generally when we are supposed to change any active sentence into positive form and which is being followed by these verbs like no, surprise and peace, then we are supposed to use to and at the same time. We are adding to and at. Just free of cost, free में लगा देना है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने कहा था, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और आपको ये वर्ड दिख जाता है नो, सरप्राइज एंड पीस, मतलब फ्री में टू एंड आएगा चलता है। For more future continuous, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पैसिव फॉर्म होता है नो, कभी नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, जैसे कि विल, इट इज जनरली फॉलोड बाय विल बी एंड गिवन an ing form। Then if we are supposed to change future continuous like into a passive voice, then it will be a clutter like will be and be3 form। Can it be done any day? No, because हम be का ही be फोर्थ फॉर्म साथ में पढ़ रहे होते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। That's all, because we aren't supposed to study future continuous tense in passive voice and for intransitive verbs। Yes, very cool। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे कुछ sentences होते हैं जिनका हम object ना होते हुए भी फॉर्म passive में change कर सकते हैं। Because in the beginning we study that if there is any sentence having no object, can we translate that or can we convert this sentence into passive voice? Therefore, but yes, there are exceptions though, as I mentioned। इंग्लिश और एक्सेप्शंस बहुत अच्छा रिश्ता है इन दोनों का। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे कि हमारे पास कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी हुई है, सेट, नाउ, अहेड। नो ऑब्जेक्ट मींस नो पैसिव। हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उनका कोई पैसिव फॉर्म होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम फर्दर चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो चीजें क्विक रिकैप डाली है कि भाई क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है एक्टिव से पैसिव तक। एक ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना कोई भी, then finding an object, I don't think it's a great task। find an object first। कोई भी सेंटेंस हो, उससे पहला ही ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ जाओ कि कोई पैसिव हो ही नहीं सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, मींस नो पैसिव, इतनी मेहनत नहीं करनी सेंटेंस में। फिर यूज करना है appropriate form of be, as we did that tense wise किस तरह फॉर्म में चेंज होता हुआ आ रहा है। present simple which will be changed into am, is, are and be3 form। Past simple means be2 or did or given form which will be changed in was word। future simple will and be1 form change होगा will, be and be3 form। अगर आपको बस इतना करना है, you will have to find and all kind of redundant, you have got the content to study like is, am, are, was, were, जो भी का करेक्ट फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, हमें उसमें चेंज करना है and it is followed by past participle verb be3 and place the original subject into the place of an object। क्या कहा? interchange, you have to do this thing, you have to interchange between the subject and object। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उठ करके आ गया। And we have got plenty of examples like shall we do,
An example right now. She abused, मैं थोड़ा एग्जांपल लूंगा, she abused it. भाई उसने गाली रोज कर दी उसे साथ में। लड़के कहाँ साथ बैठने वाले हैं, पलट के जवाब जरूर देंगे, मेरी गो, she abused him। अब अगर ये चेंज होगा इनटू पास्ट स्टेटमेंट, ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा ऑब्वियसली। जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये हमने नॉमिनेटिव केस में जाएगा, और क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल, then in passive form it will be followed by was were and be form। he के अकॉर्डिंग was लगा देंगे, singular helping verb, then abuse इसका थर्ड फॉर्म भी abused ही होगा, he was abused। एजेंट के लिए हमें बाय लगाना पड़ेगा ट्रांसलेशन, then agent will be followed by that, she अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा which is he was abused by her, केवल उसको गालियां दी गई किसके द्वारा, उसके द्वारा। Next we have got another thing that you have to change the pronouns as we did कि भाई pronouns को change करना है बहुत जरूरी है, match the tense of the be verb to the original tense। हमें be की जो फॉर्म है वो एग्जैक्ट मैच करनी है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज कर देना जरूरी है, नहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर देंगे। Though the fact is we have got exception cases to change these tenses also, but we will be doing that unnecessarily। We are done with that। Active का काम क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस में क्या करना होता है, वो क्रिटिसाइज करना होता है। Last thing to remember that we generally pursue this change of voice topic to just to describe that if we are supposed to emphasize the doer, we use active state, and if we are supposed to emphasize the verb, then by the doer, and kind of not to count doer, then we use past statements। जब हमें यूजर doer को काउंट ही नहीं करना होता एक तरीके से कि भाई हाँ doer है भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस सिंपल फॉर्म में हम सिर्फ काउंट को एम्फसाइज कर देंगे, एक्शन को एम्फसाइज करते हुए नजर आएंगे। और रिसीवर जैसे अभी हमने सेंटेंस बढ़ाया भाई शी अब्यूज है, उसने उस बात रिसीवर को हमने क्या किया, एम्फसाइज कर दिया कि भाई उसको गालियां पड़ी हैं, जब भी एम्फसाइज करना है या फिर एक्शन को या फिर रिसीवर को, वी डूइंग द पास्ट स्टेटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी मेड पासिव। जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है उनका पासिव फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, आई लाफ्ड एट हिम, भाई मैं उस पे हंसा, आई लाफ्ड एट हिम, अगर ये ना हो सेंटेंस में, can I change this, can I convert this into a passive voice any day? No, it isn't quite possible। Like if we are supposed to translate, let's see, then we will be doing this thing only, he obviously objective case nominative, and laugh obviously we2 past simple, followed by was one and v3, he was laughed at। preposition अगर दिया हुआ है सेंटेंस में, one more thing to kind of keep in your mind, if there is preposition already given in the sentence, you aren't supposed to change its position। आप preposition की position भी change करते नजर नहीं आ सकते, no, not anything। preposition जहाँ था वहीं रहेगा, it was after the verb and it is after the verb। as I said, essence में बिल्कुल change नहीं होता, इसीलिए कहा था he was laughed at by, नहीं कौन सा था उसके ऊपर, मेरे द्वारा उस पर हंसा गया, कुछ ऐसा जो पैसिव में साउंड करेगा। और if I say he was laughed at, is it wrong then? Never।
Because as I mentioned, we are just emphasizing the word, the action and the receiver. So we can just simply omit the doer from the sentence. या हम उसको हटा सकते हैं वहां से, उसकी जरूरत नहीं रहेगी. That's it for today. I hope you'll be doing great. Keep watching something. See you guys next week there. Are you to shoot?